crore, now 8.6% is around 12 crore Adivasi throughout the country. There was specific criteria like who can be a scheduled tribe. I will list that. There's indication of primitive traits, distinctive culture, geographical isolation, shyness of contacts with the community at large, and backwardness. We were in government previously also, and there used to be a procedure where a JPC was constituted, MPs were part of it, both the houses, and they used to visit places, site visit, everything, and they used to check these criteria. They used to recommend who is scheduled tribe, who is not. But what I'm seeing is last 4-5 years, we started with Himachal Pradesh, Tamil Nadu, Karnataka, and I think we have included almost 150 to 200 tribes or scheduled tribes. And I will talk about Odisha. Anyone who goes to Odisha to demand a tribal status, they send it to central government and recommending. So they have sent around 180 tribes to be considered scheduled tribes from Odisha government. And this naturally raises a concern if all the cases are genuine or not. And the process I will explain, sir, how it happens. It's first recommended by the state government, then is concurred by RGI, Registrar General of India, the National Commission for STs, and then the ministry comes with a bill where a scheduled tribe can be accorded status to a particular tribe. Previously, sir, in Himachal Pradesh, I had raised this concern also. In the bill itself, they said this section of people from this community are scheduled tribe, and this section of people, they don't want to be scheduled tribe, give them scheduled caste. How is this possible, sir? Is there proper verification happening? This is a concern of all tribals. If you make everyone tribal, where will the tribals go? If due consideration, due norms have been followed or not, this is the main concern for us. And in this particular bill, sir, I will talk about Jodia community. Jodia community, I've raised this issue also multiple times. They have been demanding as the inclusion of or Jodia, a synonym of Poroja, at serial number 55 in scheduled tribe list of Odisha. There are about 1 lakh people in undivided Koraput district and some parts of Kalandi who are this Jodia tribe. Sir, they used to get tribal status till 1997. But what happened in 1997? Because of industrialization, you can't acquire the tribal land. So in the registry, the Tehsildar and the officers, they used to write they are non-tribals. Because और जिसमें 50 सबग्रुप लाभार्थी होंगे, ऐसे एक विधेयक उड़ीसा संबंध में लाया गया, आंध्र में भी लाया गया है। अध्यक्ष जी, चेयरमैन सर, मैं 2-3 शब्द में इस विषय को थोड़ा वर्णन करूं। ये अभी मेरे मित्र सप्तगिरी उल्का जी, जो कोरापुट हमारे देश के एक बहुत महत्वपूर्ण ट्राइबल केंद्र की प्रतिनिधि भी है, ट्राइबल संसदीय क्षेत्र की प्रतिनिधि है, वो बड़े पैशनेटली कुछ विषय को उल्लेख कर रहे थे। कुछ विषय उन्होंने सही भी कहा है। किसी भी व्यवस्था में जो ट्राइबल कम्युनिटी के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन व्यवस्था है, उसको सभी को पालन करनी चाहिए। राज्य सरकारें हो, भारत सरकार हो, आज प्रतिनिधि सभी को पालन करना चाहिए। लेकिन हमारी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व वाले सरकार के बारे में मैं 2-3 विषय कहूँ। इसी सदन ने जिस महत्व के साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम को पारित किया, जैसे ही ऐतिहासिक है। मैं उड़ीसा से आता हूँ। आज 4 प्रिमिटिव ट्राइब की इंक्लूजन और 50 सब ग्रुप की अनमोलेज करेक्शन इतना ही महत्वपूर्ण है। जब देश की राष्ट्रपति उड़ीसा की एक आदिवासी घर की महिला है, उसी समय में इस प्रकार की महत्वपूर्ण संशोधन लाना सरकार की मंशा की इंडिकेशन करता है, इंटेंशन के बारे में इंडिकेशन करता है। सरकार ट्राइबल प्रोटेक्शन के लिए कमिटेड है, सरकार गरीब कल्याण के लिए कमिटेड है। मैं अगर उसकी 2-3 एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, अध्यक्ष जी, सप्तगिरी जी कई प्रकार के अनामोलिश के बारे में बात कह रहे थे। बात तो अनामोलिश ठीक है। आपकी जिस पार्टी से आप आते हुए पार्टी लंबे समय तक देश को शासन किया। आपकी कई पीढ़ी राज्य सरकार में प्रतिनिधित्व किया, भारत सरकार को भी आप प्रतिनिधित्व किए, आप भी खुद यहाँ आ गए हैं। उड़ीसा की जो जनजाति समुदाय है, ये अनावली को कब ठीक हुआ? जब अटल बिहारी वाजपेयी जी, और ये मसला कब से चल रहा है? ये मसला अगर हम उड़ीसा सरकार ने 169
जातियों के कई प्रकार के अनामोलिस के बारे में कब से ये 1979 ऑन रिकॉर्ड जो मिल पा रहे हैं 1979 से ही ये विषय लगभग पिछले 40-42 साल से चल रहा है, 45 साल से चल रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने 2002 में। उड़ीसा की अनामोलिस को संशोधन करने के लिए पहला प्रयास था। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी की सरकार दिल्ली में भी रही, राज्य में भी रही, संशोधन नहीं हुआ। अभी आप बोलने के लिए बोल रहे हो कि भाई ये सरकार ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। दूसरी बार कब संशोधन हो रहा है? अभी 2024 में। मैं तो उड़ीसा की ओर से, उड़ीसा की ट्राइबल कम्युनिटी की ओर से प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करता हूँ, अर्जुन मुंडा जी को आभार प्रकट करता हूँ, भारती जी को आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने एक ऐतिहासिक पहल और कदम उठाई है इस अनामोलिस को खत्म करने के लिए। उतना नहीं, अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने नवंबर 15 को अनाउंस किया, देश में ये जो पीवीटीजी कम्युनिटी है, 75 कम्युनिटी है, चेयरमैन साहब, there are only 75 tribal PBTG community in the all over country. Their number is around 35 lakhs. They don't matter anywhere in the voting polity. वो कह रहे थे कि चुनाव आने से होता है, ये कोई वोट की मायने नहीं रखता है। 24,000 करोड़ रुपए स्पेंडिंग बजट ऑफ 24,000 crore. Government has come out with a scheme, the प्रधानमंत्री जनमन scheme. This is the commitment of Modi for tribal community of the country. यह हमारी प्रतिबद्धता है। हम विषय को एक चरणबद्ध तरीके से उसको समाधान की रास्ता निकालते हैं। हमारी सरकार की प्रतिबद्धता सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास प्राप्त करना है। सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी सरकार हम चलाते हैं। आज 500 एस्पिरेशनल ब्लॉक ट्राइबल कम्युनिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी कदम है। 112 जिले में एस्पिरेशनल जिला के नाते उसको फोकस तरीके से डेवलप करना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। मैं बहुत पुरानी बात नहीं कहूँगा। 13-14 में यूपीए की सरकार की आखिरी साल में ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री की बजट साइज था 4,300 करोड़। टुडे in the 24-25 budget, the recently tabled budget, the amount size is 13,000 crore. 3 times increase is there. ये आपकी प्रतिबद्धता, ये मेरे प्रतिबद्धता यही प्रमाणित करती है। तो आंकड़े हैं, तो तथ्य है। अभी एकलव्य विद्यालय, कल ही प्रधानमंत्री जी ने उदाहरण रखा है। एकलव्य विद्यालय पहले 2014 में 100 के बराबर था, आज 400 एकलव्य विद्यालय खुल चुका है और 740 तक की संख्या पहुंचेगी। लगभग 29,000 करोड़ रुपया खर्चा करके भारत के राष्ट्रपति जी से लेकर गांव देहात में रहने वाले आज पहली बार, अभी ये ट्राइबल प्रोड्यूस के बारे में बात कर रहे थे, मैं आपको जिम्मेवारी के साथ एक चुनौती देता हूँ। इस सरकार के समय में फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मिनिमम सपोर्ट प्राइस की घोषणा की गई थी, मोदी सरकार में की गई थी। आप भाषण दिए हो, ट्राइबल पॉलिटिक्स किए हो, ट्राइबल सेंटिमेंट को आप गुमराह किए हो, आपने कुछ किया नहीं है। करने का सौभाग्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ये हमारी सरकार की उपलब्धि है। मैं इस बिल को उड़ीसा की ओर से 4.5 करोड़ जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूँ, देश की ट्राइबल कम्युनिटी की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। इस हिस्टोरिकल निर्णय को, इस अनामोलिस को ठीक करना। और सर, मैं जिस चुनाव क्षेत्र को कभी प्रतिनिधित्व आज एमएलए किया था, आज एमपी किया था सर, एक पाबुड़ी भूमिया करके कम्युनिटी वेरी रिमोट एरिया है ही ट्राइबल, लेकिन उनको मानक नहीं था, कोई व्यवस्था ही नहीं थी। पहली बार नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको जनजाति की मान्यता दिया, इसमें उनको तो खुशी होनी चाहिए। आपने नहीं किया। आप तो दशमलव ऑफ यू लीडर ऑफ दिस कंट्री, कई प्रधानमंत्री आपके है, कौन मना किया था इसको करने के लिए? अगर ये सरकार कर रही है तो ये प्रशंसा की पात्र है, समर्थन की पात्र है। मैं इस बिल को समर्थन करते हुए सभी को अपील करता हूँ इसके साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। Thank you. Thank you. Before calling Mr. Sendil,
two important points that have been made by Saptagiri. That one is deforestation for industrial purpose, relocation, and the closure of PSUs, which will give negative impact on the employment opportunity of tribals. It should be kept in the mind of the government. Please, Senthil Kumar. I am appreciating the measures taken by the government. नम्रता से इस सरकार को कह रही हूँ कि आपका बहुत बड़ा नंबर है, तो आप यहाँ बड़े 300 आपके MPs हैं, तो आप मराठा, धनगर, लिंगायत, मुस्लिम, टकारी और VJNT के भामटा और रामोशी समाज की जो मांग है उसके बारे में प्लीज़ सोचें। मैं बहुत विनम्रता से फिर एक बार विनती करती हूँ कि ये सरकार इस बारे में सोचे और कोई निर्णय ले। सिर्फ राजकीय रैलियों में ये कहते हैं आरक्षण देंगे, लेकिन जब करने की बात होती है ये कुछ नहीं करती। ये सरकार महाराष्ट्र के सारे समाज के खिलाफ है, ऐसा महाराष्ट्र सरकार पे आरोप है। थैंक यू सर। Thank you.